میں آج صبح آپ سب کو خوشامدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد خدا نے ساری دنیا کی تخلیق کی، اور خدا نے جب ساری دنیا کی تخلیق کی تو لکھا ہے خدا نے ایٹ دا اینڈ آدم اور ہوا کو پیدا کیا۔ اور جب آدم اور ہوا کو پیدا کیا تو بائبل بتاتی ہے خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ عدن میں ایک پرسکون، پر اطمینان، خوشحال اور صحت مند زندگی بسر کرے۔ لیکن خدا نے جب ان کو وہاں پر رکھا تو خدا نے آدم اور ہوا کو یہ بتایا کہ تم اس باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے درمیان میں ہے تم ہرگز اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تم نے اس کا پھل کھایا کیا ہوگا؟ تم مر جاؤ گے۔ لیکن آدم اور ہوا نے نافرمانی کی اور انہوں نے اس پھل کو کھایا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں نافرمانی سب سے پہلا گناہ تھا، اور جب یہ گناہ اس جہان نے اس گناہ کی پیروی کی تو بائبل بتاتی ہے کہ یہ نافرمانی کا گناہ اور زیادہ پھلدار ہوا اور تمام دنیا کو گناہ اور موت میں اس نے جھونک دیا۔ آدم اور ہوا نے خدا کی نافرمانی کی، اور آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تمام جو ہولناکیاں ہیں وہ اس بغاوت کا نتیجہ ہے جو آدم اور ہوا نے باغ عدن میں کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں، جو غلطی یا خطا یا گناہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے ذاتی اعمال ہیں اور ان کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ نافرمانی ہمیشہ ہمارے لیے مشکل لے کر آتی ہے۔ جب بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے حکم کی بجائے اپنی مرضی کو ترجیح دی ہے۔ جب بھی ہم لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمانداروں کی زندگی میں نافرمانی صرف ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ان کے ارد گرد ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہے، جو بھی ان کے تعلق میں ہے، وہ نافرمانی ان کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارا خاندان، اس کے بعد ہمارے گرد و نواح کے لوگ، اور بعض اوقات ہماری نافرمانی کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے جو غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں یا جو خدا کی پیروی میں نہیں ہوتے، اور وہ بھی ہماری نافرمانی کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی ہی مثالیں دیکھیں گے، اور آج جو میرا عنوان ہے، یہ جو آج میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا مضمون ہے نافرمانی کے نتائج۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، پہلی تواریخ، پرانے عہد نامہ میں سے تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی سے 13 آیات۔ لیکن ہم لوگ 13 آیات نہیں پڑھیں گے، ہم صرف 13ویں آیت پر غور کریں گے۔ تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات ہمارے سامنے حوالہ ہے، اور یہاں پر ساؤل بادشاہ کی جو وفات ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 13ویں آیت پڑھوں گا۔ دیکھیے گا خدا کے کلام میں سے تواریخ کی پہلی کتاب 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت،
सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावन के हुजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावन की बात ना मानी, और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था, ताकि उसके जरिया से दरियाफ्त करे, और उसने खुदावन से दरियाफ्त ना किया, सो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यस्सी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी गई। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, सब कहे आमीन। आज इस हवाले में हम लोग देखेंगे कि साउल अपने गुनाह के सबब से मरा। ये पहली 10 आयात अगर हम लोग देखें, पहली 13 आयात, पहली आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि इस्राएली और फलस्ती फौजों के दरमियान जंग, और जंग इस कदर गंभीर के इस्राएली जो है वो फलस्तियों के आगे से भागते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि फलस्तियों ने साउल और उसके बेटों को पकड़ा, उनका पीछा किया, पीछा करके उनको पकड़ा, उनको कत्ल किया, और फिर बाइबल हमें बताती है कि उनकी लाशों को जो है वो दीवार पर टांग दिया गया। इस कदर जुल्म, 4 आदमी, 3 बेटे और 1 बाप। साउल के 3 बेटे, पहला बेटा कौन है? योनातान, फिर अबीदाब, और फिर मल्कीशुआ। ये 3 बेटे साउल के, और ये अपने बाप की नाफरमानी का अंजाम भुगतते। तीनों बेटे और उनका बाप साउल। ऐसा क्या हुआ कि इस्राएल के बादशाह और उसके तीनों बेटों को दुश्मनों ने मारा, और शहर की फसील पर उनकी लाशों को टांग दिया, लटका दिया। और क्यों लटकाया? ताकि सब उनको देखें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, याद रखें, पहली बात जो खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है, अगर हम लोग इस्राएल की हालत देखें तो बाइबल बताती है इस्राएल ने खुदा को रद्द कर दिया। इस्राएल की बर्बादी, तबाही, शिकस्त का जो सबब था, जो वजह थी, वो खुदा को रद्द कर देना। बड़ी अहम बात है, इस्राएल खुदा को रद्द कर देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में से खुदा के इख्तियार को निकाल डाला। We don't want you, we don't want your authority, हमें तेरा इख्तियार नहीं चाहिए। ये जिंदगी मेरी है, ये जान मेरी है, ये बदन मेरा है। जो चाहूं मैं करूं, जैसे चाहूं मैं रहूं, जिसे चाहूं मैं पूजूं, जिसकी चाहे मैं इबादत करूं। बाइबल बताती है वो दूसरी कौमों की तरह खुदा की बजाय किसी इंसान को बादशाह बनाना चाहते थे, और उन्होंने सैमुएल से कहा, सैमुएल जो कौम बनी इस्राएल का नबी, और बाइबल बताती है कि उन्होंने सैमुएल से कहा कि हमारे लिए किसी को बादशाह मुकर्रर कर, जबकि बाइबल ये बताती है खुदा ने फरमाया कि बादशाह, हुक्मरान, इख्तियार, इक़्तिदार सब कुछ मेरा है। लेकिन कौम बनी इस्राएल खुदा को रद्द करके किसी इंसान को बादशाह मानना चाहती या बनाना चाहती है। सैमुएल ने साउल को लिया, साउल को उसने मसा किया बादशाह मुकर्रर होने के लिए, और फिर खुदा की बजाय वो साउल को अपना बादशाह मानने लग पड़े। सो पहली गलती इस्राएल की कि उन्होंने खुदा को रद्द किया और खुदा की बजाय इंसान को अपना बादशाह माना। दूसरी बात, जब साउल बादशाह बन गया तो साउल ने भी वही गलती की और उसने खुदा को
मुस्तरद कर दिया, उसने भी खुदा को रद्द कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में खुदा के इख्तियार को, जैसे कौम बनी इस्राइल ने खुदा के इख्तियार को रद्द किया, साउल ने भी खुदा के इख्तियार को रद्द कर दिया और वो बादशाह बन बैठा। मैं बादशाह हूं, मैं किंग हूं, मैं हाकिम हूं, मैं हुक्मरान हूं, मैं हुक्मरान आला हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। Nobody can stop me। बाइबल मुझे और आपको बताती है खुदा ने उसे हदायत दी। खुदा हमें भी हदायत देता है, देता है, देता है, हदायत देना कि नहीं देता? यही करना, आप वही करते हैं जो साउल ने किया। उसने खुदा की हदायत की बजाय अपनी मर्जी को तरजीह दी। उसने अपनी मर्जी से चलने का इंतखाब किया। मेरी जिंदगी मेरे से मर्जी करो, मेरा जब दिल करे मैं दुआ करूं, जब दिल करे मैं चल जाऊं, जब दिल करे मैं खाना खाऊं, जब दिल करे मैं ये करूं, जब दिल करे मैं वो करूं, जिससे दिल करे मिलूं, जिससे दिल करे ना मिलूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। साउल ने खुदा की हदायत को रद्द कर दिया। उसने खुदा की आवाज को रद्द कर दिया। और आज बेशतर मैं और आप ये गलती करते हैं। आज हम बेशतर खुदा की आवाज की बजाय इंसान की आवाज को सुनते हैं। और क्या सुनते हैं? जो हमें अच्छी लगती है। खुदा ने आदम और हवा को कहा तुम दरख्त का हर फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के दरमियान है तुम वो फल। पैदाइश की किताब के 3 बाब में हवा गार्डन में फूल इकट्ठे कर रही है, एंजॉय कर रही है, सैर कर रही है, और उसके पास इब्लीस आता है सांप की शक्ल में और उसे कहता है हाँ भाई हवा सुना, क्या हाल है तेरा, कैसा है तू कैसी है, तेरा बंदा कैसा है? उन्होंने कहा सब खुशबाज, एंजॉय। उसने कहा तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो। उसने कहा हाँ खा सकते हैं, वो भी खा सकते हो। नहीं, वो खुदा ने मना किया। क्यों मना किया? खुदा ने क्यों मना किया शराब ना पीना? खुदा ने क्यों मना किया तो गंदी चीजें ना खाना? खुदा ने क्यों मना किया तो झूठ ना बोलना? और अगर तू झूठ बोलेगी, अगर तू वो फल खाएगी, अगर तू नाफरमानी करेगी, अगर तू खुदा के हुक्म के खिलाफ जाएगी, तो तू मरेगी नहीं, बल्कि क्या होगा? तू और ज्यादा अमीर हो जाएगी। इब्लीस आता है नाफरमानी कर, इब्लीस आता है खुदा के खिलाफ जा, इब्लीस आता है खुदा की हदायत को रद्द कर दे, इब्लीस आता है खुदा के कलाम से निगाह हटा, तो तू मरेगा नहीं। और हम लोग उसकी आवाज पर कान लगाते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हम खुदा की आवाज की बजाय हम उन आवाजों को तरजीह देते हैं जो हमारे लिए हलाकत पैदा करती है। यहां पर खुदा के बंदा शमूएल ने साउल के लिए पेशगोई कर दी थी कि अगर तू खुदा का नाफरमान हुआ तो खुदा तुझसे तेरी बादशाही छीन लेगा। अगर आप शमूएल की पहली किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़े तो वहां पर यह हवाला आपको मिल जाएगा। पहला शमूएल 13वां बाब 14वीं आयत, वहां पर यह लिखा हुआ है, खुदा पे शमूएल पेशगोई करता है, साउल तेरी नाफरमानी के बायस तेरी बादशाही जाती रहेगी और खुदा तेरी जगह किसी और को बादशाह मुकर्रर कर देगा। याद रखे, खुदा नाफरमानी पसंद नहीं करता, खुदा हुक्म अदूली पसंद नहीं करता, खुदा अपनी हदायत से मुनहरफ होना पसंद नहीं करता, खुदा किसी और की आवाज पर कान लगाना पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है जो कुछ मैंने तुम्हें कहा तुम उसे कबूल करो। जब साउल ने खुदा की नाफरमानी की, क्या हुआ? खुदा ने उसे रद्द कर दिया। मेरे साथ देखिएगा पहला शमूएल और उसका 28वां बाब, शमूएल की पहली किताब और उसका 28वां बाब हम लोग देखेंगे और 28वीं बाब की 4थी आयत से हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम वर्स 4। यहां पर लिखा है,
और सैमुअल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसके शहर रामा में दफन किया। और साउल ने जन्नात के आशनाओं और अफसून नगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शनीम में डेरे डाले, और साउल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया और वो जलबुआ में खामसन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों में और ना ओरीम और ना नबियों के वसीले कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजिमों से कहा, की करो, आओ कोई भैन लभीए जेड़ी कैंची चलांदी है, आओ कोई भैन लभीए जेड़ी पर्चियां पांदी है, आओ कोई भैन लभीए जो बताए कि मुझ पर टूना किसने किया है। यहां पर साउल वही गलती करता है, कहता है ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना कौन हो, जिसका आशना। साउल का गुनाह बढ़ता गया। पहला गुनाह उसने वो किया जो उससे करना वाजिब ना था, जो उसे करना वाजिब ना था। उसने कुर्बानियां चढ़ानी शुरू कर दी, जबकि कुर्बानी चढ़ाना काम सिर्फ किसका है, काहिन का। हर शख्स कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता। सुन ले आज बड़े गौर से, जेडे सारे दुआवां करते फिरते हो ना, जिन्हें क्या मेरे से दुआ करो, तुम दुआ कर देते हो, दिस इज डेंजरस फॉर यू। हर शख्स का काम कुर्बानी चढ़ाना नहीं है। यू हैव नो लीगल अथॉरिटी। एक घर दे काहिन बनना बंद कर, दिस इज डेंजरस। खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाना ये सिर्फ कहानत करने वालों को या काहिनों को हक बख्शा गया कि वो ये कर सकते हैं। और ये अगर हम लोग खुदा के कलाम से पढ़े तो हमें इसके बारे में पता चलता है। पहला सैमुअल उसका 9वां बाब अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें ये बात पता चलती है कि साउल ने जो है वो कुर्बानियां चढ़ानी शुरू कर दी, और ये उसके लिए जो था वो मुश्किल था, और उसने ये गलती की जबकि ये उसका हक नहीं था कि वो ये काम करता। बाइबल बताती है कि जब खुदा ने साउल को जो है वो रद्द कर दिया, हमने ये 4था बाब पढ़ा, तो यहां पर क्या हुआ, जब खुदा उससे दूर हो गया, फिलिस्ती उस पर चढ़ आए और वो खुदा से कहता है मुझे बता। खुदा खामोश है, देयर इज नो आंसर फ्रॉम गॉड। खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं, खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं है, खुदा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, और वो खामोश। और जब खुदा ने ना ख्वाबों में कलाम किया, ना नबियों के वसीले, ना रोया में, तो क्या हुआ, वो गया जादूगरों के पास। उसने कहा कोई ढूंढो, कोई जिन कोई ऐसी औरत ढूंढो जिसका आशना, जिसका यार जिन हो। याद रखें, फिलिस्ती इस्राइल और उसकी बादशाही को खत्म करने के लिए आखिरी जंग के लिए इकट्ठे हुए। यह खुदा की तरफ से था। सैमुअल मर गया और अब कोई नहीं जो साउल और खुदा के दरमियान काम करे, बातचीत करे। अब साउल किसी भी मशवरे के बगैर जंग में जाने से डरता था, क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं था। आपका ताल्लुक जब खुदा के साथ नहीं होगा, आपके अंदर खौफ होगा, आपके अंदर मायूसी होगी, आपके अंदर बेदिली होगी, आपके अंदर बेचैनी होगी, आपके अंदर बेइत्मीनानी होगी, आपको शिकस्त का डर होगा। साउल खुदा से दूर, खुदा से हटकर, खुदा के इख्तियार से बाहर जिंदगी बसर कर रहा, और वो नहीं चाहता कि वो खुदा की मर्जी के बगैर जंग करे, क्योंकि वो जानता था मैं मारा ना जाऊं। उसने क्या किया, उन्होंने कहा चलो खुदा नहीं थे जिन्नी से। आज हम लोग भी अपनी मुश्किलों से रिहाई पाने के लिए जादूगरों का सहारा ले लेते हैं। कितने अफसोस की बात।
चलो चलिए पता कराइए केड़ा है जिन्हें साढ़े ते दम शब्द किया है। उसने जनाब के यारों से मशवरा किया, लेकिन फिर भी उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मेरे चीजों हो सकता है ये कहानी में है, हम ये सारा ये हवाला महज हमें कहानी मालूम हो रहा हो, शायद हम इसे कहानी समझते हैं और यही लगता है कि जंग में तो अक्सर लोग मरते हैं, तो साउल भी मर गया, उसके बेटे भी मर गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अक्सर अपनी जिंदगी में होने वाले वाक़यात को, जो भी हमारी जिंदगी में वाक़यात होते हैं, हम उनको नॉर्मल रहते हैं। तुझे नाम भी होता है, मेरे नाम भी हो गया, कितनी बड़ी गल है। नो, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दूसरों के साथ भी होता है, अगर मेरे साथ भी हो गया, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए तैयार कर लिया। आपने साउल की तरह खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आपने साउल की तरह खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, आपने साउल की तरह खुदा को रद्द कर दिया है। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि आसमान पर खुदा एक ही है जो जमीन पर इख्तियार रखता, और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। ये जिंदगी उसी के दम से है, ये सांस उसी के दम से है, वो इसका मालिक है, वो इसका खालिक है, और वही है जिसने मेरी और आपकी जिंदगी को डिजाइन किया। अगर अब हम इस दम, इस सांस की कदर नहीं करते, तो हम खुदा की कदर नहीं करते। खुदा चाहता है हम इस बात को समझें। अगर हम उसके इख्तियार को रद्द करके अपने रास्ते पर चलेंगे, तो जान ले हम उसके नताइज को भुगत नहीं सकेंगे। हम में इतनी शक्कत नहीं, हम में इतनी कुव्वत नहीं कि हम उन नताइज को भुगते। खुदा मुझे और आपको ये बताना और ये सिखाना चाहता है। खुदा मुझे और आपको ये जो है तरबियत देना चाहता है कि हम खुदा के कलाम को जाने और खुदा के कलाम के मुआफिक जिंदगी बसर करें। साउल अपनी खता की वजह से मरा, बाइबल मुझे और आपको ये बताती है, और बाइबल मुझे और आपको ये बताती है कि खुदा हमारी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है। खता किसकी थी? साउल की। और वो इल्जाम किस पे लगा रहा है? सैमुएल पर। और क्या इल्जाम लगा रहा है? कह रहा है तू ही लेट आया, जब तू नहीं आया तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कुर्बानियां चढ़ा लूं। वो कह रहा है तेरी वजह से मैंने कुर्बानियां चढ़ाई, तू जल्दी आ जाता, तू कुर्बानी चढ़ा लेता, लेकिन तू वक्त पर नहीं पहुंचा तो मैंने कुर्बानी चढ़ा दी। ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम इस बात को जानें कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के इख्तियार में जिंदगी बसर करें। साउल सैमुएल को खताकार जो है वो ठहरा रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है, मगर खुदा ने किसे जिम्मेदार ठहराया? साउल को। खुदा ने साउल को कहा ये तेरा काम नहीं है, कुर्बानियां चढ़ाना, मजबे बढ़ाना तेरा काम नहीं है। आज हमें ये बताया जाता है अक्सर, नहीं तेरी गलती नहीं है, वो आजकल का माहौल ही है, मां प्यो इंज ही ने, अजकल परवरिश नहीं सही करते, वो अज की नस्ल ही इंज दी है, कंप्यूटराइज नस्ल है। आज भी ये कहकर इस तरह के मफरूज़े बयान करके हमें या कोई और चीजें बता कर ये तसल्ली दी जाती है तेरी खता नहीं। और अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो हम ये भी कह सकते हैं ठीक है सैमुएल लेट हो गया तो सैमुएल नहीं आया तो साउल ने कुर्बानी चढ़ा ली, लेकिन खुदा इस बात को कबूल नहीं करता, खुदा बहानों को कबूल नहीं करता। माहौल कल भी वही था, आज भी वही है, माँ बाप कल भी वही थे, आज भी वही है, नस्ल कल भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन खुदा का कलाम
करता है, हालात कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो, वाक़ियात कोई भी हो, तेरे गिर्द माहौल कोई भी हो, तुझे खुदा के इख्तियार में, खुदा की मर्जी में जिंदगी बसर करनी है। कोई बहाना नहीं, खुदा कोई लेम एक्सक्यूज नहीं मांगता, खुदा कोई बहाना नहीं सुनता। बाइबल कहती है वो इल्मुल कुल है, वो सब कुछ जानता है। जो उसके इख्तियार में जिंदगी बसर करेंगे वो तो बचे रहेंगे, लेकिन जो नाफरमान होंगे वो उसके नताइज को भुगतेंगे। सुने, हम सब खुदा के सामने जवाबदेह हैं। एक दिन मैं और आप लाइन में खड़े होंगे खुदा के हुजूर, और हम सब खुदा के हुजूर जवाबदेह हैं। साउल मर गया, कत्ल किया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। इसलिए नहीं कि सैमुएल ने काम हुआ, इसलिए भी नहीं कि फिलिस्तीनियों ने जंग इस्राएल पर काबू पा लिया, बल्कि इसलिए कि साउल ने जिंदा खुदा को रद्द कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की मजदूरी मौत है। जो नाफरमान होगा वो मौत का मजा चखेगा। जब आगे अदन में आदम और हवा थे, देयर वाज अ लाइफ, वहां जिंदगी थी, लेकिन जैसे ही अदन से निकाल दिए गए तो वहां पर फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा हो गया ताकि दोबारा अंदर ना आ जाए, पैरा लग गया। और क्या हुआ? खुदा ने शैतान पर लानत की, खुदा ने औरत पर लानत की, और फिर खुदा ने मर्द पर लानत की, जमीन पर लानत की, और खुदा ने कहा, ऐ इंसान तू खाक है और खाक में, इसका मतलब यह है गुनाह की मजदूरी मौत बन गई। हम जो गुनाह करते हैं, सुने, हम जो नाफरमानी करते हैं, हम खुदा की मुखालफत करते हैं। शायद हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर सकते हैं। नो, पिछले दिनों एक वो जुमला चला था, क्या था? मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरा बदन मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है। जब हम खुदा के आइन की मुखालफत करते हैं, उसकी शान की, उसके शरीयत की मुखालफत करते हैं, उसके फरमान की मुखालफत करते हैं, हम गुनाह के मुर्तकब होते हैं और गुनाह की सजा मौत ठहरती है। जब हम खुदा की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो इसका मतलब है हमें खुदा की परवाह नहीं, हमें खुदा की परवाह नहीं। और जब हम ये सोचते हैं हमें खुदा की परवाह नहीं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी खता है। आप गलत सोचते हैं। जब आप वहां चलते हैं जहां खुदा नहीं, तो फिर आप गलत तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब आप वो देखते हैं जहां खुदा नहीं, तो इसका मतलब है आपका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब आप वहां हाथ बढ़ाते हैं जहां खुदा नहीं, तो इसका मतलब है आपका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम अपनी बातों से, हम अपने कामों से और हम अपने अमाल से इस बात का सबूत देते हैं कि हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम खुदा के खिलाफ हैं, हम खुदा के बागी हैं। याद रखिए, आज इंसान किसी को नाराज नहीं करना चाहता। इन्हों भी खुश कर ला, इन्हों भी खुश कर ला, इन्हों भी खुश कर ला, ऐसा ही है। और हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। हम दुनिया को भी खुश रखना चाहते हैं और खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं। हम दुनिया को भी दोस्त रखना चाहते हैं और खुदा को भी दोस्त रखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। अगर आप दुनिया के दोस्त हैं, दुनियादारी के दोस्त हैं, तो आप खुदा के दुश्मन हैं।
क्योंकि हम दुनिया और खुदा दोनों को खुश नहीं कर सकते। कोई नौकर दो मालिकों की, कोई नौकर क्या करता है? दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। किसकी करेगा? या तो एक के साथ मिला रहेगा और दूसरे से अदावत रखेगा। बाइबल कहती है आज लोग कलाम को जानते हैं। कितने लोग कलाम को जानते हैं? डरते क्यों? कितने लोग कलाम को जानते हैं? प्रेज़ गॉड, हम सब जानते हैं। याद रखें, कलाम को जानना और उसकी पैरवी करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम कलाम को जानते हैं लेकिन हम कलाम की पैरवी नहीं करते। हम कलाम को जानते हैं मगर हम कलाम की फर्मा बरदारी नहीं करते। हम कलाम को जानते हैं मगर शरीयत और आइन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। आज अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा का कलाम क्या कहता है, क्या फरमाता है, क्या लिखा है, मगर वो इन्हीं बातों या कामों को जो खुदा का कलाम कहता है करने से गुरेज करते हैं। वो वही करते हैं, वही कहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अगर हम यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़े तो यिर्मयाह नबी का सहीफा हमें यह बताता है कि हम अपने दिलों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या नहीं हो? आप अपने दिल पर भरोसा कर सकते हैं? हेलो, आप अपने दिल पर भरोसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आपका अपना दिल है, कोई तो नहीं रह गया, देखता नहीं किसी ने। हम अपने दिल पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी भी बदल सकता है। हम अपने जज्बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आज जैसे जज्बात थे कल जैसे जज्बात ये भी बदल सकते हैं। हम ना तो अपने ख्यालात पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम पर भरोसा कर सकते हैं जो ला तब्दील है, कभी तब्दील नहीं होता, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, जो जिंदा है, कायम है और हमेशा जिंदगी देता है। हम सब चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते सिवाय खुदा के कलाम पर। साउल जानता था खुदा ने क्या कहा। साउल जानता था ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, कहानत मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट प्रीस्ट। वो जानता था कुर्बानी चढ़ाना मेरा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसने कुर्बानियां चढ़ा दी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो साउल की तरह और दूसरी जगहों से सलाह लेना पसंद करते हैं। अक्सर लोग एक बात कहते हैं और अक्सर मैं उस बात से थोड़ा सा परेशान भी होता हूं। लोग कहते हैं पादी साहब खुदा की मर्जी को तो जरा पूछें, खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है? मैं पासपोर्ट बनवा लिया, मैं वीजा फीस भी जमा करा दी, वीजा से अप्लाई भी करता हूं, पूछो क्या है मैं बाहर जावा ना जावा? तो पीछे रह गया मैं पूछना, बाकी की रह गया। मैं दसो तो सही गल। ये बड़ी अहम बात है कि हम लोग इस बात को जाने। अगर हम लोग गिनती की किताब पढ़े तो वहां पर हमें ये बात मिलती है। वहां पर जो नबी है वो ये कह रहा है कि अगर खुदावंद की मर्जी हुई या अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक, हम लोग अपनी मर्जी को तरजीह देते हैं, हम खुदा की मर्जी को अहम नहीं समझते। इस बात को समझें, खुदा की मर्जी काम करना या काम शुरू करने के बाद नहीं, काम स्टार्ट करने से पहले पूछनी है। खुदावंद आया हम ये शुरू करें या ना करें, आया इस काम में हाथ डालें या ना डालें, आया हम लोग खुदावंद की तरफ जाएं या ना जाएं, आया खुदावंद तुम्हें इजाजत देता है या नहीं देता। हम लोग आधा काम कर लेते हैं और फिर कहते हैं सिस्टर जी जरा दुआ ते करियो खुदा की मर्जी पता लगे। जे कभी खुदा की मर्जी पूछनी होवे, इस काम से मैं अपने एल्डर ट्रेन किए हुए, गलती नाल बिना चूंदे जी पूछ लियो, वरना मेरा कोई कसूर नहीं।
خدا کی مرضی کام سٹارٹ کرنے کے بعد نہیں، کام شروع کرنے سے پہلے۔ کسی بھی بات، کسی بھی کام، کسی بھی سفر، کسی بھی راہ کو اختیار کرنے سے پہلے خدا کی مرضی کو جانے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خدا کی مرضی ہے بھی ہے کہ نہیں، میں اس پادری سے دعا کروں کہ نہ کروں۔ مجھے اکثر پاسٹر معلم کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے، ساری ساری کلیسیا بیمار ہے، انہاں دا کوئی علاج کرا۔ میں کہا جی میرے تو کدی کسی نے نہیں دسیا بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ساری ساری کلیسیا بیمار ہے۔ میں کہا کہ میں جڑا کوئی خادم آتا ہے اندر ڈہ پہنتی ہے، سارے ہی بیمار کھڑے ہو جاتے ہیں، ساڈے تے بھی دعا کر دے، ساڈے تے بھی دعا کر دے۔ وہ بیمار ہو جا کے دوائی کھاؤ۔ آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں، اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں، لیکن کیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خادم آیا اور نے کیا میرے کو دعا کراؤ، آئی سارے آ گئے ساڈیاں بدلواں کٹ جڑیاں شک دیاں نے تے نکل دیا پھر نہیں، اگلے دوبار پھر کوئی نواں لیا نہیں، اور پھر اتنے آئیں گے پھر دعا کرانا۔ We have doubt, we have no faith۔ ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ ہم سب بیمار نہیں، لیکن ہم کا اعتقاد ضرور ہے۔ اس بات کو سمجھے، اگر کسی نے بیماری کے لیے آلٹر کال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بیمار ہوا، لیکن کیا ہے ہم لکیر کے فقیر ایک گیا تو میں بھی جاؤں گا، دوسرا گیا تو تجھے بھی جائے گا۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے پادری صاحب مسا کر رہے ہو نا ہاتھ رکھ کے، اب میرا کاکا بھی کرتے یہ منڈی بھی شاید میرا کاکا کرتے بھی، درو کے کاکے کھچ کے لیا کے وہ دے کلا بھی دینے ایک دے ہاتھ رکھ دے۔ What we are doing، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، خدا کی راہ پر یا اپنی راہ کا چناؤ، خدا کی مرضی یا اپنی مرضی کے مطابق۔ یاد رکھیں خدا خادموں کو مقرر کرتا، ہاتھ رکھیں گے بیماروں پر وہ شفا پائیں گے، بدبوئیں نکلیں گی، معجزات ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کس میں بیماری ہے تو مجھ میں بھی بیماری ہے۔ اگر ایک بدرو گرفتہ ہے تو میں بھی بدرو گرفتہ ہوں، اگر ایک کمزور ہے تو میں بھی کمزور ہوں۔ چیک کریں میری زندگی میں کیا ہے، میں نے کہاں خدا کو رد کیا۔ یاد رکھیں نافرمانی کے نتائج ہمارے لیے بھیانک، نافرمانی کے نتائج ہمارے لیے تباہی، نافرمانی کے نتائج ہمارے لیے اذیت۔ نینوا یونا کو خدا نے کہا جا نینوا کو اور جا کر ان کے لیے کیا کر، کلام کر، نبوت کر، انہیں بتا، کیا بتا، میں شہر کو نینوا کدھر کیا، میں نہیں دبئی جانا، میں امریکہ جانا۔ یونا کا کیا، ترسیس کو کیا ہوا، خدا اسے واپس لانے کے لیے۔ میں نے پہلے کہا گناہ جب بھی کوئی بھی نافرمانی کرے گا اس کے ارد گرد کے لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ جتنے اس جہاز میں تھے وہ تمام خدا پرست نہیں تھے، لیکن کیا ہوا، اس خدا پرست کی نافرمانی نے، کس کا خدا پرست کی، یونا کی نافرمانی نے کیا کیا، پورے جہاز کو مشکل میں ڈال دیا۔ یونا آرام میں ستا گیا، اٹھایا اسے، اور تو سو رہا ہے، ہم سب مر رہے ہیں، پکار اپنے خدا کو، پکار اپنے دیوتا کو۔ یونا جانتا تھا میں ہی ہوں، میری وجہ تم مصیبتیں پہ گی۔ سنو نے اپنا مال اسباب جو کچھ تھا انہوں نے سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی جہاز ہلکا نہیں ہوا، کوئی طوفان نہیں تھما۔ یونا نے کیا کہا، یونا نے کہا میں چوکے سے ایک چھوڑ دی، میری نافرمانی سے میرا خاندان پریشان، میری نافرمانی سے میری کلیسیا پریشان، میری نافرمانی سے میری قوم پریشان، میری نافرمانی سے میرا شہر پریشان، میری نافرمانی سے میری کشتی کے لوگ پریشان۔ یاد رکھیں آپ کی نافرمانی آپ کی زندگی پر نہیں، آپ کے گرد و نواح کے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ ان کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گی، وہ ان کو بھی پریشان کر دے گی، وہ ان کے لیے بھی اذیت پیدا کر دے گی۔
याद रखें, जो खुदा की सुनना नहीं चाहते या जो खुदा की आवाज को पसंद नहीं करते, खुदा उन्हें साउल की तरह रद्द कर देता है, और इसीलिए खुदा ने साउल को मार डाला। हो सकता है आप में से कोई एक नाफरमान हो और वो पूरे घराने के लिए तबाही का बर्बादी का सबब ठहरे। खुदा साउल ने खुदा और उसके कलाम के खिलाफ सरकशी की, और खुदा ने क्या किया, उसकी जान ले ली। नाफरमानी का नतीजा हलाकत है। इस बात को समझें। आज हम लोग मैदान जंग में हैं। We are in spiritual warfare। हम एक रूहानी जंग के आलम में हैं, और जब हम रूहानी जंग के आलम में हैं, हमें इस बात को समझना होगा, अंडरस्टैंड करें। रूहानी जंग के आलम में अगर हम नाफरमान हो गए, दुश्मन हमारा सर हमारे तन से जुदा कर देगा। वजह, क्योंकि खुदा ने हमसे हाथ उठा लिया। दुश्मन आपके खिलाफ, वो आपको रुस्वा कर देगा, बर्बाद कर देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपका दुश्मन आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आपका खुदा आपसे प्यार करता है। आपका दुश्मन आप पर रहम नहीं करेगा, लेकिन आपका खुदा आपकी फरमाबरदारी से रहम करेगा। एक और बादशाह जिसने खुदा की नाफरमानी की और खता की, लेकिन उसने उसका इकरार भी किया। याद है किसी को कौन सा बादशाह था? वो दाऊद। यस। और अगर ज़बूर 51 मेरे साथ आप निकालें, तो यहाँ पर दाऊद जो है वो मुआफी के लिए खुदा से इल्तिजा करता है। और मुआफी कब मांगी जाती है? जब हमने कोई खता की हो। अगर हमने गुनाह नहीं किया तो माफी का दी, अगर खता नहीं की तो माफी कौन सी? तो यहाँ पर दाऊद जो है वो ज़बूर 51 में माफी मांगता है, और क्या कहता है? ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह से मुझे, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है। लिसन केयरफुली, इस बात को जानना मेरी बहन, इन दोनों में फर्क है। साउल ने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, लेकिन दाऊद खुदा के हुजूर इकरार कर रहा है और तौबा कर रहा है। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए हैं, और बाइबल कहती है कोई नेक नहीं, एक भी नहीं, कोई रास्त नहीं, कोई पाक नहीं। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल फरमाता है, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारे गुनाह के असर से हमें निकालना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जमीन पर भेजा। और लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम कोशिश करते हैं अपने गुनाहों को छुपाने की, हम कोशिश करते हैं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की, मगर वो चाहता है कि हम खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करें। वो चाहता है हम खुदा के हुजूर जाएं और अपने गुनाह से तौबा करें। और इसीलिए यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। वो चाहता है हम सारे गुनाहों से पाक हो जाए। वो चाहता है हम सारी बदकारी से जो है वो रास्तबाजी में आ जाए, हमारी नाराजगी जाती रहे। वो चाहता है हमारे गुनाह धुल जाए, वो चाहता है हम पाक और साफ और शफाफ नजर आए। इसलिए वो कहता है अपने गुनाह का इकरार कर।
اور بائبل فرماتی ہے جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اگر آپ اپنی زندگیوں پر خدا کی رحمت چاہتے ہیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ خدا کی نافرمانی آپ کے لیے ساؤل کی طرح اور اس کے بیٹوں کی طرح ہلاکت لائے گی۔ آپ کی زندگی میں اذیت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں دکھ آ جائے گا، آپ کی زندگی میں پریشانی بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اور زیادہ تنگ دست ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے حالات بدتر ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسمان کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا لیے زمین جو ہے وہ لوہے کی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے لیے پیداوار بند ہو جائے گی، آپ کے لیے برکت ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے آنسو، دکھ، رونا، چلانا، اذیت وہ شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جب ساؤل نے نافرمانی کی وہ صرف اس نے نہیں بلکہ اس کے بیٹوں نے بھی بھگتی۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سدھار لیں، ورنہ آپ کا کیا آپ کے بچے بھگتیں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ بڑے خوشحال ہو سکتا ہے آج آپ کا کاروبار آسمان پر بلندیوں پر جا رہا ہو، لیکن کچھ ہے جو نیچے سے کاٹ رہا ہے، جو نیچے سے کھا رہا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جب ہمارے فرنیچر کو کوئی کیڑا لگتا ہے تو کیا ہمیں فوراً نظر آتا ہے؟ کب پتہ لگتا ہے؟ جب ایک لاکھ ٹانگ کے تھیلے ڈگ گئی، جب سارا فرنیچر خراب ہوتا ہے ہمیں اینڈ میں پتہ لگتا ہے وہ انہوں نے سارا ہی کیڑا لگ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نافرمانی کا کیڑا آپ کی زندگی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے گھر کے اطمینان کو، آپ میاں بیوی کے رشتے کو، آپ کے بچوں کے رشتے کو، آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کو، ان کے فیوچر کو، آپ کی نسل کو، آپ کی خوشحالی کو، آپ کے بدن کو، آپ کی صحت کو کھا رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ تب نظر آئے گا جب اچانک کوئی دھماکہ ہوگا۔ وہ ایجو ہو گیا۔ ساؤل کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور یاد رکھیں نافرمانی کے نتائج ہولناک ہیں، بھیانک ہیں، ڈراونے ہیں، اذیت ناک ہیں، دکھ دینے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، موت پیدا کرنے والے ہیں۔ یوحنا کی طرح آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ کیا کرے؟ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور گنہگاروں کو نجات دے۔ آئیے نافرمانی کو بند کریں، آئیے نافرمانی کے نتائج سے بچیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب موت ہمارے سر پر ہوگی، اذیت ہمارے سر پر ہوگی، مشکل ہمارے سر پر ہوگی، دشمن ہمارے سر پر ہوگا اور ہم پھر چلا رہے ہوں گے۔ نافرمانی کے نتائج ہولناک، آئیے ان ہولناک نتائج سے بچنے کے لیے خدا کی فرما برداری میں آ جائیں۔ اور یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے اگر تو راضی اور فرما بردار ہو تو کیا کرے گا؟ زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ آمین۔ لیکن اگر تم کیا کرو؟ انکار کرو، نافرمان ہو جاؤ، باغی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تلوار کا لقمہ ہوگے۔ یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے۔ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آئیں تاکہ خدا ہم سب کو رحم کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ناراضگی سے